Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is trespass to person and property. In the course of today's video, we will understand the meaning of the trespass of person and property as well as understanding these concepts individually. One thing to note here is that we are not going to cover the aspect related to Indian Penal Code for trespass to person and trespass to property. This is strictly for tort law. Okay. So now without further ado, let's jump into the PPT. So now we have jumped into the PPT, trespass to the person and property. The particular PPT has been divided into 5 parts. First part would be the introduction. Second part where we will look at the meaning of the trespass of person and property. In the third part we will understand the concept of trespass to person, and in the fourth part we will understand trespass against the property. Introduction. In tort law, trespass refers to a legal cause of action that allows an individual to seek remedies for the interference with their possession or use of land, property or personal space. Trespass is a civil wrong or a tort that involves an unauthorized intrusion or encroachment onto another person's property or physical space. यहाँ पे ये बोला गया है कि टॉर्ट के अंदर कि पर्टिकुलर ट्रेसपास जो है वो एक सिविल रॉन्ग है. अगर कोई भी एक थर्ड पार्टी मेरी प्रॉपर्टी पे आके वो अंदर अनऑथोराइज्ड लीग अंदर आना चाहे या फिर मेरी बिना परमिशन के मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी करना चाहे तो उसे हम ट्रेसपास मानेंगे. Under the tort law, it is a civil wrong, whereas under the Indian Penal Code 1860, it is a criminal offence. ठीक है? When a person commits trespass in any of these forms, the injured party may seek legal remedies. These legal remedies can include injunctions to prevent future trespass, compensation for damages suffered, and in some cases punitive damages. यहाँ पे क्या बोला गया है that कोई भी बंदा अगर ऐसा trespass commit करता है तो प्लेंटिफ जो है कोर्ट से वो डैमेजेस मांग सकता है, इंजंक्शन मांग सकता है, प्यूनिटिव डैमेजेस भी मांग सकता है. ट्रेसपास इज बोथ अ सिविल एंड अ क्रिमिनल रॉन्ग बिकॉज इट कैन कॉज एन इंजरी दैट इज द वायोलेशन ऑफ लीगल राइट्स एज वेल एज डैमेज टू वन पर्सन्स प्रॉपर्टी एंड सब्सटैंशियली इफ फिजिकल अटैक टेक्स प्लेस. अगर कोई बंदे को हम रोकना चाहें विथ सेफ्टी मेजर, जैसे कि हम लोग किसी पिलर को खड़ा कर दें या तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स बैठा दें जैसे जो भी ट्रेसपासर हैं उसको एक हल्का सा शॉक लगेगा. अभी इन दिस सिनारियो वो उस चीज़ को तोड़ के भी अंदर आना चाहता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है बिकॉज वो वायरिंग करवाना इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग. तो अगर वो तोड़ के भी अंदर आता है तो उसके ऊपर ट्रेसपास का ऑफेंस लगेगा ही लगेगा, बट उससे एक फाइनेंशियल लॉस भी होगा. ट्रेसपास को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. वन इज़ फॉर पर्सन एंड सेकेंड इज़ फॉर प्रॉपर्टी. पर्सन के अंदर जैसे असॉल्ट हो गया, बैटरी हो गया, मेहम हो गया, वेराज इन प्रॉपर्टी हम लोग मूवेबल, इमूवेबल और गुड्स की बात करेंगे. ठीक है. मीनिंग. Trespass can be said to be an action exceeding the limit carved by the law. It is intentionally directed and unreasonable interference with one's property. A person and property. The word intention here implies committing the wrong voluntarily. Trespass के अंदर हमें कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा कि ये नेग्लिजेंट एक्ट था या तो फिर ये हमने गलती से किया है. ये कहीं पे भी मेंशन नहीं कर सकते बिकॉज अगर आप कोई भी जगह पे जा रहे हो, आपको पता है कि ये जगह या तो प्राइवेटली ओन्ड है या सपोजिवली कोई भी एक जगह अगर ओपन भी है तो फिर भी आप वहाँ नहीं जा सकते. दैट विल अमाउंट टू ट्रेसपास. ठीक है. It is to be kept in mind that intention forms the essential component of trespass. Unreasonable behavior is triggered by the malafide and ulterior intention to harass another. Trespass करने के 2 ही मोटिव होते हैं. या तो आपको कुछ वहाँ पे डैमेज करना है तो आपको किसी को हरास करना है. Trespass to person. ठीक है. It is an unreasonable interference with malafide intention of the individual's body which is committed either by causing physical harm or by apprehension of use of force. It is further divided into assault, battery and false imprisonment. Mainly we will be looking at 2 aspects, that is assault and battery. Wrongful apprehension of fear in the mind of other person causing him to suffer harm is known as assault. No physical harm is indeed needed to establish to prove the assault.
असॉल्ट का मतलब ये होता है कि आप एक मैर प्रिपरेशन दिखाते हो जिसकी वजह से सामने वाले बंदे के दिमाग में एक डर बैठ जाता है कि ही इज़ अबाउट टू गोइंग टू हिट मी और ही इज़ अबाउट टू यूज़ हिज फिजिकल फोर्स, ठीक है, टू डैमेज एनी बॉडी पार्ट ऑफ माई बॉडी। ये प्रिपरेशन दिखाना भी एक असॉल्ट है जिसमें हमें इंटेंट प्रूव करना रहता है। अपेरेंट एबिलिटी टू कैरी आउट द पर्पज़ मतलब वो थोड़ी बहुत एक मूवमेंट दिखनी चाहिए। एप्रीहेंशन मतलब वो चीज़ कोई भी बंदा देखे आके तो उसके दिमाग में भी यही बैठना चाहिए दैट ये बंदा अभी हमें हिट करने वाला है, नॉलेज ऑफ थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल एक्स के और वाई की एक हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रही है। एक्स ने जो है अपने हाथ की राइट हैंड की एक हल्की सी मूवमेंट की ताकि वो ऐसा कुछ पोर्ट्रे कर सके कि वो अभी वाई को चाटा मारने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसका इंटेंट था, क्योंकि हीटेड आर्ग्यूमेंट थी, मतलब वो वहाँ पे प्रूव हो जाएगा। सेकेंडली अपेरेंट एबिलिटी टू कैरी आउट द पर्पस मतलब उसने हाथ उस डायरेक्शन में घुमाया कि वो वाई को चाटा ही मारने वाला था। एप्रीहेंशन का मतलब अगर वाई की जगह मैं होता या आप होते या कोई भी एक और थर्ड पार्टी होता तो उसको भी यही लगता कि एक्स मुझे चाटा मारने वाला है। नॉलेज ऑफ थ्रेट तो अल्टीमेटली वहाँ प्रूव हो ही जाएगा, तो इसे हम असॉल्ट मानेंगे। बैटरी में क्या बोला है कि जैसे एक्स और वाई के बीच में ये हुआ, वाई एक्स ने ये मूवमेंट किया बट इस सिनारियो के अंदर एक्स ने वाई को एक्चुअल में हिट किया, तो इसे हम बैटरी मानेंगे, ठीक है। व्हेन द फोर्स इज यूज्ड अगेंस्ट अ पर्सन इन अ मैनर दैट इट कॉजेज अ फिजिकल इंजरी, यहाँ पे वाई को भी इंजरी होगी, देन द यूज ऑफ सच फोर्स टर्म्ड एज बैटरी। द फोर्स सो यूज शुड बी इंटेंशनल एंड विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। यहाँ पे भी यही बोला कि डायरेक्ट जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, वहाँ फोर्स होना चाहिए और वो वॉलंटरीली होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे केस लॉ है। इन द केस ऑफ आर वर्सेस एस जॉर्ज, अ पर्सन टुक आउट द गन प्रिटेंडिंग इट टू बी लोडेड एंड पॉइंटेड आउट टू अनदर पर्सन। द अदर पर्सन इन द apprehension of fear suffered a shock. The person was held liable. It did not matter whether the gun was loaded or unloaded, but the foreseeability of person or apprehension of fear did matter. In the same case, if the gun pointed back and person who was not aware of it, then this act would not constitute assault. यहाँ पे क्या बोला गया है कि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के सामने गन पॉइंट की, चाहे वो एक टॉय गन थी या एयरसॉफ्ट गन थी या तो फिर एक लोडेड गन थी या फिर एक अनलोडेड गन थी, वो पीछे का सवाल है, ठीक है। अभी अगर मेरे सामने कोई अनजान बंदा आके एक गन पॉइंट करता है, मुझे पता नहीं कि वो गन रियल है या नहीं, उसमें बुलेट्स है या नहीं है, मेरे दिमाग में यही आएगा कि अगर मैं मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स उसे नहीं दूंगा तो ये मुझे शूट कर देगा। अल्टीमेटली मेरे दिमाग में एक फ़ियर पैदा होगा, उस वजह से मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है, इसलिए मैं उसे वो जो मांगेगा वो दे दूंगा। यहाँ एक केस में भी यही हुआ था कि उस बंदे को वहाँ पे एक शॉक लगा जिससे वो बेहोश हो गया, बट यहाँ पे भले ही गन खाली थी फिर भी उसको लायबल किया गया था। अगर ये गन किसी और डायरेक्शन में पॉइंट की होती, ठीक है, तो इसे हम असॉल्ट नहीं मानते क्योंकि वो एक पर्टिकुलर बंदे की तरफ डायरेक्शन में नहीं थी, भले ही वो बुलेट से लोडेड थी या नहीं थी, वो बात का सवाल है, ठीक है। तो असॉल्ट में इतना ही ध्यान रखना है कि वो चीज़ डायरेक्टली पोर्ट्रे होनी चाहिए कि जिसके ऊपर ये सब हो रहा है, ठीक है। Similarly in the case of R versus Costanza, the defendant mailed 800 letters to plaintiff. Along with this, the person also wrote offensive words on the main door of the plaintiff which made her suffer clinical depression. The defendant was held liable for the assault and was penalized as well. यहाँ पे क्या बोला गया था कि एक बंदे ने सामने वाले को कुछ लेटर्स लिखे थे ऑफेंसिव वर्ड्स का यूज़ करके, हेटेड लैंग्वेज का यूज़ करके, जस्ट सो दैट सामने वाला बंदा उसे पढ़ के एक बुरा फील करे या तो समझे कि यार ये क्या हो रहा है। उस वजह से प्लेंटिफ जो थे वो क्लिनिकल डिप्रेशन में चले गए। इस सिनेरियो के अंदर डिफेंडेंट को लायबल किया गया था फॉर असॉल्ट एंड ही वाज पीनलाइज्ड, मतलब उनको पनिशमेंट भी मिली थी, उनको जेल टाइम भी देना पड़ा था। बैटरी का केस लॉ है ये। इन अदर वर्ड्स, unintentional or lawful use of force cannot be termed as battery. In the case of Stanley versus Powell, both the plaintiff and the defendant were from the shooting party. The defendant fired his gun at a pheasant. However, the bullet from his gun reverted back after striking a tree and hit the plaintiff accidentally, which wounded the plaintiff. Defendant was not held liable for the tort of battery because the act of defendant was not intentionally done.
यहाँ क्या बोला गया है कि स्टैनली एंड पॉवेल एक शूटिंग इवेंट में थे। काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर शूटिंग इवेंट काफ़ी पॉपुलर है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हवा में उछाला जाता है, उसे शूट किया जाता है। इन डूइंग दिस एक्टिविटी डिफेंडेंट जो है उन्होंने गलती से शूट किया, बट वो मतलब गलती से नहीं, इंटेंशनली शूट किया था वो टारगेट को हिट करने के लिए, टारगेट इंटेंशनल था। बट हुआ यूँ कि वो टारगेट मिस हो गया उनसे और बुलेट जाके एक ओक ट्री पे लगी। वहाँ से वो बुलेट रिवर्स होके प्लेंटिफ को जाके लगी, उस वजह से प्लेंटिफ को काफ़ी चोटें आ गई। इस सिनेरियो में कोर्ट ने यही बोला दैट डिफेंडेंट का जो एक्ट था वो इंटेंशनल नहीं था। उनका इंटेंशन ये था कि उसे वो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को हिट करना है, ना कि वो चीज़ को हम एक पेड़ पे टारगेट करें जहाँ से बुलेट रिवर्स होके प्लेंटिफ के ऊपर आके लगेगी। इसलिए ये एक बैटरी का केस नहीं है यहाँ पे। जस्ट ऑब्स्ट्रक्शन कैन नॉट लीड टू ऑफेंस ऑफ बैटरी। For instance, in the case of Ince versus Wiley, the policeman wrongfully, unlawfully restricts a person from entering a club. It was held that the police officer was an obstruction like a wall to prevent the entrance into premises. Therefore, this did not constitute a battery. यहाँ पे ये बोला गया था कि एक पुलिस ऑफिसर ने भले ही रॉन्गफुली एंड अनलॉफुली एक बंदे को एक क्लब के अंदर जाने से रोका, बट वहाँ पे वो एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक वॉल की तरह खड़े थे, ना कि किसी को मारने के लिए खड़े थे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बैटरी नहीं मानेंगे, इस चीज़ को हम असॉल्ट भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई प्रिपरेशन या एप्रीहेंशन सामने वाले बंदे के दिमाग में खड़ा नहीं किया कि मैं आपको मारूंगा और आपको चोट लगेगी, कि थ्रेट है आपके लिए ये चीज़। ऐसा उन्होंने कुछ भी दिखाया नहीं था और कुछ भी कहा नहीं था। उन्होंने खाली सिंपली इतना ही बोला था कि आप क्लब के अंदर एंटर नहीं हो सकते, दैट्स इट, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी फुलफिल कर रहे थे। ट्रेसपास के अंदर हमारे पास 5 वैलिड डिफेंसेस है। ये डिफेंसेस का मतलब ये है कि अगर हमारे ऊपर ट्रेसपास टू पर्सन का केस लगता है तो अंडर दिस 5 सिनारियो हम लोग उससे छूट सकते हैं। सबसे पहला है वैलिड अरेस्ट। ये खाली ऑफिसर्स के पास होता है कि जिनके पास अरेस्ट करने का पावर है। सपोजिवली कोई पुलिस ऑफिसर किसी एक अक्यूज्ड का अरेस्ट करने के लिए जा रहा है जिसके पास उसका वारंट भी है। इन डूइंग दैट अक्यूज जो है वो भागने का ट्राई करता है। इन दैट सिनारियो अगर पुलिस वाले को उसे अगर कुछ अनोखे तरीके से पकड़ना पड़ता है, उस वजह से वो ऐसा नहीं बोल सकता कि इट वॉज अ ट्रेसपास टू पर्सन। ठीक है। सेकेंडली, अगर कोई भी ऐसी चीज़ कंसेंटफुली हुई है, जैसे कि कोई भी एक बॉक्सिंग मैच के अंदर आप जाएं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ठीक है, वहाँ लिखा होता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर फाइट करेंगे तो उसमें आपको चोटें भी लग सकती हैं। तो हम लोग उसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ट्रेसपास टू पर्सन, उसने मुझे बिना पूछे हुए मार दिया। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है, कि आपको मैच में सब चोटें आ सकती है, आपने एक वेवर भी साइन किया है, तो उसमें आप इस चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकते, लेकिन सामने वाला ले सकता है क्योंकि आपने उसके ऊपर केस किया है। प्रोबेबल कॉज का मतलब ये भी एक चीज़ पर्टिकुलरली पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर लागू पड़ती है। प्रोबेबल कॉज का मतलब ये होता है कि आपको लगता है एज अ पुलिस ऑफिसर कि कोई एक बंदा, ठीक है, जो कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर है या काफ़ी बार पर्टिकुलर एक केस के अंदर पुलिस कस्टडी में आता है और आपको लगता है ये वापस से क्राइम करेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए आप उसका अरेस्ट करते हो। इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो अगर वो वापस से वो रेजिस्ट करता है, आप थोड़ा बहुत फोर्स यूज़ करते हो, तो उस चीज़ को हम ट्रेसपास टू पर्सन नहीं मानेंगे। लेकिन ये एक ग्रे एरिया है, यहाँ पे कोर्ट किसी एक के फेवर में डिसीजन दे सकती है। अगर पर्टिकुलरली कोर्ट को लगता है कि वो अरेस्ट गलत था, प्रोबेबल कॉज है ही नहीं, तो यहाँ पुलिस वाला लायबल हो सकता है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि प्रोबेबल कॉज है, ठीक है, कि ये बंदा आगे क्राइम करेगा, ये पर्टिकुलर चीज़ में वो इन्वॉल्व रहेगा, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो कोर्ट यही बोलेगी पुलिस ऑफिसर इज़ करेक्ट, ठीक है, इसका अरेस्ट एक लॉफुल अरेस्ट ही माना जाएगा। फिर आते हैं सेल्फ डिफेंस। अगर कोई बंदा आपके ऊपर हावी होने का ट्राई करता है, आपको मारने का ट्राई करता है, तो आप सेल्फ डिफेंस में उसको सामने हिट कर सकते हो विदाउट अ डाउट। देन कम्स द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की, जहाँ पे प्लेंटिफ खुद या तो विक्टिम जो है खुद वो जानबूझ के ऐसी कुछ हरकत करता है जिससे उसके ऊपर डैमेज हो। जैसे कि क्लासरूम के अंदर धक्का मुक्की करना, कि जिसकी वजह से किसी को भी चोट आ सकती है। स्टार्ट कोई एक बंदा करता है लेकिन अल्टीमेटली किसी ना किसी को चोट आती ही है, तो इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की उसमें खाली डिफेंडेंट का हाथ नहीं है,
डिफेंडेंट इज डेफिनेटली इन्वॉल्व, बट यहाँ पे भी आप इसका प्ली लेके आर्ग्यू कर सकते हो दैट ट्रेसपास टू पर्सन का केस यहाँ पे नहीं बनता है। फिर आते हैं रेमेडीज के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप की रेमेडीज है। फर्स्ट इज द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस विच कैन बी फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32 and filed before the various high courts, states high courts under the article 226 of the constitution of India, कि जिसका सिंपली मतलब यही है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का कि वी मे हैव द बॉडी। इसका मतलब ये है कि कोई एक बंदा अगर रॉन्गफुली अरेस्ट हुआ है, उसको कहीं डिटेन करके रखा है रॉन्गफुली और हमें उसके वेयर अबाउट्स पता नहीं है, तो ये रिट फाइल करके हम कोर्ट से ये प्रे कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बंदे को आप सामने लेके आइए क्योंकि इसका रॉन्गफुल अरेस्ट हुआ है। सेल्फ हेल्प मतलब खुद की हेल्प करें, सेल्फ डिफेंस का यूज़ करें, ठीक है। उसके आता है एक्शन फॉर डैमेजेस। तो इसके अंदर जो है आपको डैमेजेस या कॉम्पनसेशन कोर्ट के द्वारा मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर सिनारियोस के अंदर, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी के ऊपर। wrongful intervention of one over the property or goods belonging to another without any lawful justification is called trespass to land or trespass to goods respectively. This interference should be direct and in physical nature. Trespass to property is looked with the purview of possession rather than the ownership of the goods or property. In other words, a person who is having the possession of the goods or the property can bring a lawsuit for trespass against the lawful owner if such owner cannot provide lawful justification for such intervention. यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर जिस किसी भी बंदे के पास एक पर्टिकुलर चीज़ का पोजेशन है, भले ही उसके पास ओनरशिप नहीं है, ठीक है, तो वो उसके सामने केस कर सकता है दैट यू हैव नो राइट ऑफ बीइंग हियर, आई एम द पोजेसर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अभी अगर सामने वाला बंदा एक्चुअल में ओनर नहीं है तो उसके ऊपर अलग से चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं। वेराइज अगर वो बंदा ओनर है, अगर वो चीज़ कोर्ट में प्रूव कर सकता है, तो ये बंदा जो पोजेशन क्लेम कर रहा है उसके ऊपर ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी का केस बनेगा, ठीक है। लीगल मैक्सिम क्वारे क्लॉजम फ्रैजिट डिफाइंस लैंड एज लैंड इंक्लूड्स डज नॉट ओनली सरफेस एंड एनी बिल्डिंग्स on it but also the airspace and subsoil. In so far these are vested on the plaintiff the action of trespass to land penalizing direct interference with other people's land. यहाँ क्या बोला है कि लैंड जो है उससे हम खाली ऐसा नहीं मानेंगे कि उसके ऊपर कोई बिल्डिंग खड़ी है तो ही वो उसको एक लैंड मानेंगे। उसके ऊपर की कुछ हद तक की एयर स्पेस, उसका सब सॉइल भी लैंड का पार्ट है, प्रॉपर्टी का वो एक पार्ट गिना जाएगा। यहाँ क्या बोला है, इन द केस ऑफ माधव विठल कुडवा वर्सेस माधव दास वल्लभ दास, द टेनेंट लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग. द प्लेंटिफ बीइंग द लैंडलॉर्ड alleged that the act of defendant parking his car in the compound of his building amounted to trespass. He asked for injunction from the court to restrain defendant from such parking. However, the court held that the parking of vehicle cannot be amount trespass as it was a multi-storied building. ये एक बेसिक सा सिनारियो है कि जहाँ पे पार्किंग को लेके दो लोगों के बीच में इशू हुआ था। लैंडलॉर्ड जो था उसने ऐसा बोला कि मेरा जो टेनेंट है वो यहाँ पे कार नहीं रख सकता, इट अमाउंट्स टू ट्रेसपास, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग मैं ओन करता हूँ। बट यहाँ पे क्या बोला है कि भले ही आप बिल्डिंग के ओनर हो, आपने वो चीज़ टेम्पररीली किसी और के पोजीशन में दे रखी है। जब आप किसी बंदे को कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो तो आप उसको पार्शियल अपने कुछ राइट्स ट्रांसफ़र करते हो, कि जैसे कि आप पार्किंग का यूज़ कर सकते हो, कॉमन एमिनिटीज़ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप लिफ्ट्स का यूज़ कर सकते हो, स्टेयर्स का यूज़ कर सकते हो, घर में आप रह सकते हो। आप उसे खाली ये नहीं, आप खाली कंस्ट्रक्शन करने से उनको मना बोलते हो कि आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, मुझे बिना पूछे इसमें कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप इस चीज़ को बेच नहीं सकते, ठीक है। तो वो आप उनको एक टाइम बेसिस के लिए एक टाइटल देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके राइट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो जस्ट बिकॉज यू आर द अल्टीमेट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। In Bird versus Jones, the claimant was trying to go through the enclosure, but the defendant put two police officers to block the claimant's path and prevent him from entering further into the field. He was told that he could go back but not forward. After half an hour, the claimant tried to push past, whereupon he committed an assault on the defendant and was arrested. यहाँ पे क्या बोला है कि डिफेंडेंट ने दो पुलिस वाले को एक जगह पर खड़ा किया था जस्ट सो दैट जो प्लेंटिफ है, जो क्लेमेंट है, वो यहाँ से आगे नहीं जा सकता।
वहाँ पे उसको ऐसा बोला गया था कि तुम खाली पीछे जा सकते हो, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आधे घंटे के बाद क्लेमेंट ने डिफेंडेंट को मारने की धमकी दी, ऐसा एप्रीहेंशन दिखाया, ऐसा प्रिपरेशन दिखाया कि वो भी उनको मारने वाला है। सो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्लेमेंट वॉज अरेस्टेड। वाई? बिकॉज ही शोड अ प्रिपरेशन टू असॉल्ट इवन दो ही वॉज इंस्ट्रक्टेड कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। The court said that it is a false imprisonment for a person to be forced to stay in one place just as much as locking them in a room. There need not to be touching either. However, it can be a false imprisonment to avoid a person from going forward but allowing them to return the way they came. Even if it is even if it is unlawful to stop them, the person no doubt suffers a wrong but not false imprisonment. Possibly assault or battery if he is endangered or touched as he tries to get past. So here it was held that there was no wrongful restraint or confinement. यहाँ पे भी कोर्ट ने ये बोला है आगे वाले केस लॉ के अंदर बर्ड वर्सेस जोन्स में, दैट उसको वहाँ से आगे जाने से मना किया था बिकॉज ऑफ अ लॉफुल अथॉरिटी। उसको वहाँ पे अरेस्ट नहीं किया था। अगर एक पर्टिकुलर जगह से आपको जाने से रोका जाता है तो उसका मतलब नेसेसरीली यही नहीं कि आपको वहाँ पे एक रॉन्गफुल या फिर एक फॉल्स इम्प्रिजनमेंट दे के रखी है। ठीक है, आपका ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट भी नहीं था, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी नहीं था। वहाँ पे लॉफुल अथॉरिटीज़ ने बोला था कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, आपको यहाँ से पीछे जाना पड़ेगा। इन डूइंग दैट अगर आप उनके ऊपर हावी होने का ट्राई करते हो, आप प्रिपरेशन दिखाते हो कि अभी आप उनको मारने वाले हो, तो इस चीज़ को हम असॉल्ट ही मानेंगे। ठीक है, ना कि आप सामने क्लेम कर सकते हो कि इट वॉज अ लॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट। In Reed versus Coker, D and his men surrounded P, rolling up their sleeves and threatened to break P's neck if he did not leave. P was a rent collector who entered D's workshop and refused to go until the rent was paid. It was held that it was an assault. In the condition attached, the threat was not enough to nullify it. इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर यही बोला है कि स्लीव्स का रोल अप करना इट्स अ साइन कि यू आर अबाउट टू यूज योर फिजिकल फोर्स टू हिट समबडी। इट इज़ अ सेट प्रैक्टिस। भले ही ये चीज़ फिल्म्स में ज़्यादा दिखाई जाती है, बट ये चीज़ रियल लाइफ में जिसके साथ हुई है उनको पता ही है कि ये सब सिनेरियोस के अंदर पीपल व्हेन दे फोल्ड देयर स्लीव्स एंड ट्राई टू हैव अ हीटेड कॉन्वर्जेशन, इट इज़ लाइकली टू अल्टीमेट और हैव अ कंक्लूजन ऑफ फिस्ट फाइट्स। ठीक है, जहाँ पे एक दो पंचेस ये लैंड करेंगे, एक दो पंचेस वो लैंड करेंगे। अल्टीमेटली इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ असॉल्ट इवन दो उन्होंने कोई ऐसा फिजिकल फोर्स यूज़ नहीं किया था, बट उन्होंने प्रिपरेशन दिखाई थी। ठीक है, तो इससे हम असॉल्ट का केस मानेंगे। यहाँ पे क्या बोला है दैट अमित कपूर वर्सेस रमेश चंद्रन अदर merely because there is a civil transaction between the parties it would not by itself alter the status of allegation constituting a criminal offense. यहाँ पे क्या बोला है दैट अगर कोई किसी दो बंदे के बीच में अगर रेगुलर सिविल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि मैं मेरे फ्रेंड के ऑफिस में डेली बेसिस पे जाता हूँ, ठीक है, बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड, मैं काफ़ी बार नॉक नहीं करता, सिंपली दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाता हूँ। इवन दो इट इज़ नॉट एथिकल और मोरल, बट बिटवीन अस फ्रेंड्स इट इज़ कॉमन थिंग, क्योंकि वो भी मेरी ऑफिस में आके काफ़ी बार ऐसा करता है और ये चीज़ से हम दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वन डे अगर वो बंदा मेरे को ऐसा बोलता है कि इफ़ यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी वंस अगेन, तो मैं तुम्हारे पे ट्रेसपास का केस कर दूंगा, तो इट इज़ रॉन्ग। बिकॉज आपके बीच में डेली बेसिस के ऊपर ट्रांजैक्शन होते हैं, तो ये अल्टीमेटली वहाँ पे प्रूव नहीं कर पाओगे आप कि ये ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी कैसे हुआ। ठीक है, बाय दिस स्लाइड दिस लेक्चर इज इफेक्टिवली ओवर एंड आई वुड लाइक टू थैंक you all so much. If you guys have any doubts regarding this particular lecture, please visit our website judicialdream.com. Please connect to us with our Instagram page and Telegram channel. You will find daily updates over there. Once again, I would like to thank you all. Thank you very much.